Hello students, today again I am here with a new chapter that is from the history part, and the chapter 3, the A's of farming. So in the previous chapter we have learned that early human, they will live in their forest area, and just their life they are surviving with the whatever they will got in the forest area. Means they are the hunter gatherer. They will hunt the animals as well as they will gathering whatever will is found in the forest area. So after that we have learned that how the early human use the stonings, means stone tools, and that is we have learned about the three ages, that a stone age जो है that is divided into the three parts. One is the Paleolithic and Mesolithic as well as the Neolithic. And in the previous chapter these three ages के बारे में हमने learn किया है, study किया है. And this is also a part of the Neolithic age. Means जो chapter today we will discuss, we will learn, that is the invention of the farming, discovery of the farming. Means कैसे early human will start the farming work, and this invention, this discovery is to be in the Neolithic age. First, from the starting, the introduction, that is a nomadic life. What do you mean by the nomadic life? Nomad means those people are not settled on one place and they just move one place to another place to search their food, to survive. And as we discussed earlier, that the early human will be hunter-gatherer, and that they will not be settled on the one place, just they will move one place to another place. जैसे जैसे एनिमल्स जो थे वो आगे उनको जिसको मीन्स के उन्होंने हंट करना था, दैट उसके पीछे पीछे उनकी जो मतलब कि मूवमेंट चलती रहती थी, और वेयर एवर दे विल बी हंट ऑन उसी प्लेस पे दे विल सेटल. बट आफ्टर दैट अगेन दे विल बी मूव फ्रॉम देयर, बट and they live nomadic life. So the human being from the beginning, they will they are surviving as the nomadic life. They will not be settled on one place. As new stone age, means new stone age means that is also Neolithic age. Means Neolithic age को new stone age भी बोला जाता है, and that is means जो invention nearby the जो farming work है, जो hunter gatherer जो farming work they will start nearby the 10,000 year ago. This time period जो है approximately 10,000 year ago, the early human began to produce their own food. न्यू स्टोन एज में, न्यूलिथिक एज में एक डिस्कवरी हुई कि जो अर्ली ह्यूमन जो पहले दे विल बी सर्वाइविंग विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स, मीन्स दे विल हंट द एनिमल्स एज वेल एज दे विल गैदर द फूड फ्रॉम द forest area. But in this age, nearby 10,000 year ago, the early human will start their own food production. Means उन्होंने अपना food तैयार करना शुरू कर दिया था, and they will settle on one place. वहाँ पर उनकी life जो थी वो एक place पे settled हो गई थी. Now we will discuss कि how this changing will come, how they will start their farming work. तो changing in the climate, because जो पहले का टाइम था, दैट टाइम जो दैट प्लेस दैट इज कवर्ड बाय द आइस, मीन्स आइस शीट से वो, पर जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजिंग आती गई तो क्लाइमेट विल बी वार्म, तो आइस थी दैट इज टू बी अ मेल्ट, एंड उस टाइम पे जो क्लाइमेट था दैट इज सुटेबल फॉर द फार्मिंग, मीन्स टू ग्रोइंग द क्रॉप्स, प्लांट्स के लिए दैट इज द बेस्ट. सो इसी टाइम पीरियड में दैट जो
अर्ली ह्यूमन they will eat the foods, जो फॉरेस्ट एरिया में प्लांट्स के जो भी they will eat, and they will observe कि जो फूड जो they will use that food and उसके जो seeds हैं they will eat and thrown in the means on the earth, and after some time that जो seeds हैं that seeds will be grown up. तो वो दोबारा से उनको उन चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सीड्स है वो दोबारा से प्लांट्स बनते हैं, उसकी ग्रोथ होती है, एंड देन दे विल जैसे साइड बाई साइड ये चीज इज ड्यू टू द चेंजिंग इन द क्लाइमेट दे विल ऑब्जर्व दिस थिंग, एंड आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट द ग्रोइंग क्रॉप्स. एंड अब क्रॉप्स के साथ अब सेटलमेंट कैसे हुई, सेटलमेंट का भी बेटा इज द रीजन बिहाइंड इट कि जो हम लोग हैं अब फार्मर जो है वो फार्मिंग करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर आर लिविंग इन द देयर मीन्स इन द फार्म हाउस. वाई? बिकॉज दे लुक आफ्टर द फार्मिंग, दे लुक आफ्टर देयर क्रॉप्स. तो उस क्रॉप्स को देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, संभालने के लिए दे नीड द सेटल. उसको टाइम टू टाइम वाटर चाहिए, उससे दूसरे एनिमल से उसको सेव करना है, तो इस चीज़ के लिए फिर उनको सेटल होना पड़ा. तो दे विल सेटल ऑन अ वन प्लेस. अब हमारा नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट आता है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग. बिगनिंग ऑफ फार्मिंग इज एग्रीकल्चर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द न्यूलिथिक एज. ये इस न्यूलिथिक एज की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी कि आज की जो लाइफ में हम लोग सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले जो हमारी नीड है दैट इज द फूड. दैट फूड वी आर गेटिंग फ्रॉम द farming works, means farmers give us to provide us that food. So agriculture was the greatest discovery of the Neolithic age, and during this period early human learned the technique of sowing seeds, growing plants and finally harvesting them. And with the help of this they will settle side by side. Now अब first क्या थे वो, they will food gatherers, and अब early human food gatherers थे, they will become food producer. पहले वो food gather करते थे, now they will producer, अब दूसरों को भी वो provide करते हैं food. So that in this period the early human becomes from food gatherer to becomes from the producer. How we will know that that early human will start the farming? तो उसके लिए हमें एविडेंस मिले हैं, that जो प्रूफ मिले हैं that by the archaeologist. Archaeologist, who were the archaeologists? Those will found the about the past, and archaeologists have found the evidence of early farmers. इन एविडेंस से हमें पता चला है कि early human will doing the farming work. So here we will discuss that the most important sites जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया है. ग्रेन की उस टाइम पे कौन कौन सी ग्रेन्स यूज करते थे, एंड विच ग्रेन्स विल बी एविडेंस विल बी गॉट फ्रॉम दैट साइट. एंड सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है दैट इज द व्हीट. इन आर एरिया, इन दो नॉर्दर्न पार्ट एरिया में हम लोग क्या है, हमारा ये सबसे स्टैपल फूड है दैट इज द व्हीट. एंड कहाँ इसकी साइट्स कहाँ पर मिली है इन द इंडिया, दैट इज द मेहरगढ़, गोलक्राल एंड बसम चिरम. एंड चिरम जो प्लेस है दैट इज इन द बिहार, ये बिहार में है. एंड जो गुफगरार एंड द बसम है दैट इज इन द कश्मीर. एंड मेहरगढ़ जो प्लेस है दैट इज इन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड सेम इज द राइस. अब राइस जो है दैट इज इन द साउथ पार्ट का जो स्टेपल फूड है. मोस्ट ऑफ द ग्रोथ होती है बट ये राइस मोस्टली सदर्न पार्ट में यूज करते हैं. दे विल ईट विद द फिश एंड राइस इज द स्टेपल फूड इन द सदर्न एरिया. सो हियर तो कहाँ पर मिला, दैट इज द कोल्डिवा एंड मेहरगढ़. एंड ये प्लेस कहाँ बेटा, दैट इज इन द उत्तर प्रदेश. एंड उत्तर प्रदेश में इसकी जो है क्रॉप्स को उगाया जाता है.
एंड लास्ट जो थर्ड पे आता है दैट इज द मिलेट्स. मिलेट्स मीन्स जो जवार बाजरा जो क्रॉप्स होती है ये कहाँ पर हैं, दैट इज अ हलूर. हलूर इज इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड पियमपल्ली. पियमपल्ली इज इन द आंध्र प्रदेश. Next topic, that is domestication of animals. They will start their farming work, and by doing the farming they need the help of the animals also, and so slowly they will start to domestic animals, and that like dog, sheep, buffalo, and they will start to tame the animals. और जो सबसे पहले जो एनिमल है जिसको उन्होंने टेम किया दैट इज द डॉग. डॉग सबसे पहला एनिमल है, एंड आफ्टर दैट दे विल टेम टू दैट शीप ऑल्सो एंड कैटल्स, goat, buffalo, ox, and these animals they will use to their different purposes. One of they will use it to be in the farmer while in the farming to dig the earth and to growing the crops, and as well as they use their products like milk use करते थे उनका, and they will use some animals for their heavy load के लिए यूज करते थे. एंड जो नेक्स्ट बेटा इसके बाद में आफ्टर द फार्मिंग that new invention is there in this is that is the invention of wheel. Wheel is also a very important invention in their life, and because today's your life है that we people are using each and everything, and that is even you are using your toys. Wheel is the important part of that thing, because wheel से ही आप वो छोटे से छोटा कोई टॉय आप उसको ओपन करके देखो एंड उसमें व्हील ही मिलेगा आपको. व्हील के जरिए ही या जो मशीनरी है दैट इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ व्हील. एज यू आर यूजिंग योर फैन, गाड़ी है, एरोप्लेन है, वट एवर वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ दैट इज अ वर्किंग विद द हेल्प ऑफ व्हील. सो व्हील जो थी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन दैट टाइम. बट अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हाउ दे विल इन्वेंट. उनको ये कैसे ज्ञात हुआ, उनको ये कैसे ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि दैट व्हील इज गो बनाना मीन्स कैसे उन्होंने ये लर्न किया. इसके लिए भी पीछे बेटा एक स्टोरी है. दे विल ऑब्जर्व बाय चांस मीन्स जस्ट दे पीपल वर मीन्स दैट अर्ली ह्यूमन वर डूइंग देयर वर्क कि वन डे क्या होता है कि जो लॉक पीस ऑफ लॉक होता है दैट लॉक क्या बचे दैट इज इन द राउंडेड शेप. एंड कोई भी चीज़ है जो अगर हम उसको ऊपर से मीन्स जो हाई प्लेस से उस नीचे को गिराएंगे दैट विल बी राउंड इन शेप, तो वो एक नीचे को आएगा, वो कोई चीज़ ऊपर नहीं रहेगी. बिकॉज आप देखो ये पेन है, अगर इसको हम ऊंचाई से नीचे गिराएंगे तो इट विल बी फेल डाउन. तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द लॉग कि लॉग उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लॉग है जो राउंड इन शेप में है वो अपने आप ऊपर से को नीचे की तरफ से मीन्स राउंड शेप में आ रहा है. तो इस चीज़ से उसके ऑब्जर्व किया कि जो राउंड चीज़ है, राउंड शेप कोई भी चीज़ है वो ईजीली उसको हम पुल कर सकते हैं. सो पहले क्या थे, दे विल यूज ओनली वुडन पीस ऑफ वुड उसके ऊपर रखते तो उस चीज़ को खींचते थे. तो इट विल इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, तो उसको खींचना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो व्हेन दे विल यूज द लॉग, दे विल यूज द व्हील, सो इट इज़ ईजी टू कैरी लोड वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो लॉग के जरिए उन्होंने इस चीज़ को से सीखा. तो आज इस व्हील की इन्वेंशन की वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है लगा लो या फिर जो साइंस है दैट इज इन डे बाय डे इन्वेंशन के साथ हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं. दिस इज ऑल्सो इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज अ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन दैट टाइम. नेक्स्ट, बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. अब हम पहले ही हम लोगों ने ये चीज़ के लिए डिस्कस कर रखा है कि
कि when they will start the farming work and they start सेटलमेंट मीन्स उन्होंने एक प्लेस पे सेटल होना शुरू कर दिया था, तो उसके लिए अब सेटल के लिए उनके लिए दे नीड द हाउसेस। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ हाउसेस दे पीपल यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग जस्ट दे विल डिग द अर्थ, मीन्स अर्थ को डिग करते थे एंड दैट मीन्स उसके ऊपर वो विद द हेल्प ऑफ लॉग लीव्स होते हैं स्टेम्स के साथ वो उसके रूफ बना लेते हैं, और या फिर नीचे स्टेयर्स के जरिए वो नीचे को जाते थे एंड दे विल यूज द डिगिंग हाउस मीन्स पिट हाउस उसको बोलते हैं। नीचे जमीन में एक मीन्स खड्डा खोद लेते थे और उसी पे अपना टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द एनिमल्स एज वेल एज द देयर मीन्स क्लाइमेट, डिफरेंट क्लाइमेट, कोल्ड एंड हॉट। एंड अब कुछ और चीज़ें जो मीन्स एविडेंस मिले हैं कुकिंग थिंग्स, मीन्स कुकिंग जो कि दैट टाइम, क्योंकि हमने पहले पैलेलिथिक लाइफ में भी मीन्स एज में रीड किया है कि दे विल स्टार्ट देयर जो फ्लैश था वो उसको वो कुक करके रोस्ट करके खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ द फायर की। और उस अब नाउ दे विल स्टार्ट द कुकिंग मीन्स कुकिंग तो उस टाइप पे कंटिन्यूटी वो कर ही रहे थे। अब उनको एविडेंस मिले हैं कि मटेरियल, कुकिंग मटेरियल जो है वो हाउस के इनसाइड भी होता था, बाहर भी होता था, आउटसाइड भी मिले हैं टू टाइम। अब अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट मीन्स अगर रेन है या फिर ज़्यादा मीन्स कोल्ड है तो दैट टाइम दे विल कुक द फूड इनसाइड, अदरवाइज दे विल कुक द फूड आउटसाइड। एज इन द विलेजेस एरिया नाउ, इन सम विलेजेस हैं अब भी कि वो किचन के बाहर भी खाना पकाते हैं और किचन के अंदर, टू प्लेसेस होती हैं। अकॉर्डिंग टू देयर वेदर, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट दे विल चेंज द प्लेस। दिस थिंग ऑल्सो डूइंग इन द अर्ली ह्यूमन ऑल्सो विल स्टार्ट की आउटसाइड। दिस वी नो विद द हेल्प ऑफ एविडेंस मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ एविडेंस मिले हैं, उसके जरिए हम लोगों को इस चीज़ का पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट इज द न्यूलिथिक टूल्स। जो न्यूलिथिक टूल्स है बेटा, दैट टूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पैलेलिथिक टूल्स। एंड इन दिस एज, न्यूलिथिक एज, जो न्यूलिथिक टूल्स है दैट वर two important tools, that are the mortars and pestles, and these two important tools in that period and that are very different from the Paleolithic tools, and these tools were well polished with the fine edge means जो ये वाले टूल थे इस टाइम में जो टूल्स यूज करते उसकी प्रॉपर एजेस निकालते थे, उसको प्रॉपर शेप देकर दे विल यूज द टूल्स। अगर हम बात करें पैलेलिथिक टूल्स की, दैट टूल्स वर नॉट बी इन द प्रॉपर शेप। एंड इसके लिए भी बेटा हमें एविडेंस मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस फ्रॉम द बर्जम, जो कश्मीर में जो प्लेस है उसी में से मिले हैं, दैट इज द बर्जम एंड नासिरपुर, हलूर एंड मास्की। दीज आर द प्लेसेस वेयर द जो न्यूलिथिक टूल्स हैं वो फाइंड आउट किए हैं by the archaeologist. Next topic है that is the poetry. Poetry means that things are making with the help of mud. मिट्टी से बने हुए utensils लगा लो, that things लगा लो, different things that they will use the mud to make these poetry. Now poetry will start with the help of wheel. Wheel के with the help of wheel they will use give the shape of the जो मिट्टी होती थी, जो मड होती थी, उसको वो शेप देते थे, और जिस शेप में उनको उस मीन्स यूटेंसिल्स को चाहे जैसे पॉट होते हैं तो पॉट को शेप देने के लिए दे विल यूज द व्हील। अब इस चीज़ की जो पोइट्री है, जो पॉट्स जो बनाते थे उसकी नीड कैसे हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज
when the farmer, जो early humans से farming work they will start and they will grow the crops. अब जो crops हैं whatever they will use, that crops are not be used for the at a time, तो उसको जो surplus जो मीन्स क्रॉप्स होती थी उसको रखने के लिए उनको प्लेसेस थे. पहले तो वो क्या था, मीन्स दे विल बास्केट्स यूज करते थे या फिर अर्थ के अंदर ही वो एक दे विल डिग द अर्थ एंड उसके अंदर रख देते थे. बट स्लोली दे विल यूज द पोएट्री, पोर्ट्स को बनाना शुरू कर दिया. उस पोर्ट में वो दैट सरप्लस जो क्रॉप्स होती थी, जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स होती थी, उसको स्टोर करने के लिए दे विल यूज दिस टाइप ऑफ pots and utensils. And one more thing, that they use these pots to cook the food. Next है life of the people. अब life of the people means as जैसे हम पहले भी settled means that we have discussed कि in this age they will start the settled life, कि वो एक प्लेस से पे रहना शुरू कर दिया. अब उसमें इसमें इनका जो इनमें जो आर्कियोलॉजिस्ट है दे विल मीन्स उन्होंने कंपैरिजन किया है द लाइफ ऑफ द प्रेजेंट फार्मर एंड द लाइफ ऑफ दैट फार्मर. दैट फार्मर्स, दैट पीपल वर लिविंग, दे विल स्टार्ट लिविंग इन द ट्राइबल्स. ट्राइब मीन्स जो कबीले होते थे वो इकट्ठे, ग्रुप ऑफ, ट्राइब होता है बेटा ग्रुप ऑफ द पीपल. दे विल मीन्स कुछ लोग इकट्ठे होकर एक प्लेस पे रहना. धीरे धीरे इस चीज़ जो ट्राइबल पीपल दे कन्वर्टेड टू द विलेजेस, विलेज से आगे फिर जो ज़्यादा अब नाउ सिटीज में कन्वर्ट हो चुके हैं. बट पहले स्टार्टिंग में व्हेन द अर्ली ह्यूमन विल स्टार्ट देयर सेटल्ड लाइफ, they will start, they were living in the groups, and that is known as the tribal people. And next है जो बेटा Chalcolithic age, that is in this age एक fourth type है. इसमें क्या था बेटा, firstly they will use the tools of making with the help of bones and stones. अब इस एज में आकर क्या हुआ कि इन्वेंशन हुई, मीन्स से डिस्कवरी हुई मेटल्स की, कॉपर, लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज. इस मेटल्स को उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया. तो यूजिंग ऑफ द मेटल्स इज नोन एज द Chalcolithic age, and this is approximately 6,000 years ago. मीन्स इस टाइम पीरियड में they will use the metals in place of the stones, and they will use the tools and with the metals, and metals के जरिए that their life, their work is to be very easy, because जो metals things हैं that are the means hard, they are strong according to their means comparatively to the stone tools थे, उसके comparison अगर करें तो जो metals tool थे that is a very hard and that is very strong. Now here your chapters are finished, and you will read this chapter with the help of your book and listen this video, and thank you.